organizational behavior, some having entrepreneurship development, because these are BBA, BTech and some other courses are comes under vocational courses. Those so vocational courses is designed to make you as an entrepreneur, to be ready to perform a job more effectively, more efficiently. So that's why these subjects, management subjects, are comes under your curriculum. You'll also having some other subjects also. So now we are going to start. I'm going to start. So in first unit we are going to cover introduction of management, like definition, meaning, concept, natures, managerial levels, skill, role in an organization. Functions of management are like planning, organizing, staffing, directing, controlling, and interpersonalship, interrelationship of managerial function, scope of management, importance of management, difference between management and administration. That is and I'll try to make you understand more in more easy way, so that it will help you during your exam. And I'll also give you some questions which is important for exam. So here, let's start with introduction of management, meaning and definitions. Okay, so first of all I want to tell you about that father of uh, modern management, and about father of management. Okay, father of management is Peter Drucker, and father of modern management, who given 14 principles of management, he is Henry Fayol. So about management, in introduction, this is your management. Okay, so management is has made from three words. Here you can see that management. Okay, man means human resource. Okay, we all are who are working in an organization, they are like resources. जैसे हम resources को use करते हैं हमारे लिए, जैसे useful चीज़ें होती हैं at our home, at our office. So similarly human are compared with here, or you can say that they are like resources, workforce, labor, etc. Age means time. Okay, and meant means process. We all know that if meant connected to anything, it become like a process. तो मैनेजमेंट में ये होता है कि हम ह्यूमन बीइंग का जो टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, उसकी जो पोटेंशियल है, कॉम्पिटेंसीज है, we are going to utilize them in an optimum way. I'm using word here optimum. Optimum means in a proper way. बहुत बुरे तरीके से यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी कम भी यूज़ नहीं करना, बट इन ऑप्टिमम वे, इन अ गुड वे यूटिलाइज करना है। और उनके जो भी स्किल्स हैं उनको, वो मैनेजमेंट में आता है, उसको हम बोलते हैं। मतलब ये आपके लिए सिंपल वर्ड में मैं बता दे रही हूँ। सो हियर दिस द अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद द what is the concept and about some definitions also. Here management is the process of getting things done through other with the help of some basic activity: planning, organizing, directing, coordinating and controlling to achieve the desired goal and objective. तो इन मैनेजमेंट क्या होता है कि हम मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो इन सबको हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ायर्ड, हियर आई हैव रिटन हियर डिज़ायर्ड गोल को और ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। और किस तरीके से अचीव करेंगे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। An organization cannot run for a long time if its all devices are not suitably managed. डिवाइसेस मतलब लाइक उसका प्लांट हुआ, या उसके ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, वर्कफोर्स होते हैं, लेबर होते हैं, अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं है, अगर वो अच्छे से नहीं करे तो वो लंबे समय तक नहीं रन कर पाता। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो दे शुड बी मैनेज. In another word, management is the act of harmonizing the 5 M's: men, money, materials, machines, and methods toward the achievement of desired goal and objective. जो हमारे ये जो होते हैं 5 M जिनको हम बोलते हैं, तो ये बहुत मैंडेटरी होता है हर फंक्शन को अच्छे से अचीव करने के लिए। और अगर ये प्रॉपर तरीके से हार्मोनाइज वे में, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में, कोऑर्डिनेशन में, हार्मोनाइज्ड वर्क का यहाँ मतलब आ रहा है अच्छे से, मतलब मैन का, मशीन का, सबका प्रॉपर सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली अगर मैनेज्ड है, तो वो
डिज़ायर्ड गोल को डेफिनेटली आपको अचीव करने में हेल्प करेगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट का फीचर्स भी क्या है। सबसे पहला ये फीचर आता है कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, इट मीन्स इट अप्लाइड एवरीवेयर, लाइक एट योर होम, इन स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस, रेस्टोरेंट, होटल्स, एवरीवेयर. Here I have mentioned about like commercial, social, political, everywhere. So management आपको हर जगह मिलेगा. Continuous process. Management is never ending process. Management is a continuous process because it always carries the past decision for the future course of action to achieve organizational goal. हम क्या करते हैं कि पास्ट का भी हम देखते हैं कि क्या क्या रहा है हमारा, देन आफ्टर दैट इन दैट सीक्वेंस वी आर गोइंग टू अचीव द गोल. आपने देखा होगा कि आप जब कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आप देखते भी हो कि व्हाट यू हैव डिड मिस्टेक्स इन पास्ट और व्हाट यू हैव डिड गुड थिंग इन पास्ट, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कंपेयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you will take the course of action for your future to achieve future goal. ठीक है. मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड, इट मीन्स इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं मैनेजमेंट में. जैसे कि आपका आता है कि इसमें होते हैं इकोनॉमिक्स भी होता है, स्टैटिक्स भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट, मतलब ये मिलाकर बना होता है मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड का. सोशल मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस इन नेचर. इट इज़ इसेंशियली इन्वॉल्व मैनेजिंग पीपल. अब पीपल क्या होते हैं, वो जब ग्रुप ऑफ पीपल हो जाते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हो, डजेंट मैटर, तो वो एक सोशल प्रोसेस हो जाता है. इट कंसर्न टू डेवलपिंग, रिटेनिंग, मोटिवेटिंग पीपल एट वर्क प्लेस एंड ऑल्सो केयर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन. देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब मैनेजमेंट में एक सोशल प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो एम्प्लॉय को डेवलप करते हैं. डेवलप कैसे करते हैं? ट्रेनिंग्स के थ्रू, और उनको समटाइम मोटिवेट भी करते हैं ताकि एम्प्लॉय रिटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एक मैनेजर के लिए ये टास्क होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखे. मतलब वो काम पे रहे. ऐसा नहीं है कि आप आए काम किए हो और साल भर के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जा रहे हो. नो, दैट इज़ नॉट द गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग में टाइम लगता है, उसको सिखाने में टाइम लगता है, फिर वो वेस्ट हो जाता है. तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एम्प्लॉय को रिटेन रखे. ठीक है. फिर उसके बाद मोटिवेट भी करे, फिर उसके सेटिस्फैक्शन भी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी मेजर है, तभी वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग फोर्सेस. मैनेजमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग बाय देम, दे शुड गेट देयर वर्क डन बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर. देखो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को ये भी कहते हैं इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर. मैनेजमेंट वो एक कला है, आप बोल सकते हो, जिससे हम किसी से अपना काम करवाते हैं. मैनेजर क्या होता है, खुद नहीं काम करता. ही यूज़ टू मोटिवेट हिज और हर एम्प्लॉय. वो चाहे तो डांट के भी कर सकता है, पोलाइटली बिहेव करके भी कर सकता है, बट उसको अपना काम करवाना होता है. ही इज़ नॉट गोइंग डू द वर्क बाय हिज ओन हैंड. वो लेबर से या जो उसके साथ में है, जो उसके अंडर में है, तो उनसे वो काम करवाता है. गोल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ का एक गोल होता है. तो मैनेजमेंट का भी एक गोल है, इसका गोल ओरिएंटेड एक नेचर है इसका. वो किसी पर्पस से ही किया जाता है. इट वर्क ओनली टू अचीव पर्टिकुलर गोल विच डिसाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग गोल होता है. किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का होता है, विद सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ और विद द लुकिंग विद द नेशंस. पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे आर ओनली लुकिंग फॉर द प्रॉफिट. तो सबका अपना अपना अलग गोल होता है. द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक और बार हम देख रहे हैं, कुछ और है इसमें, कुछ नेचर्स. रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज दे शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते हो आप कि आप बिल्कुल परफेक्टली है, ये यहाँ पे अगर ये अप्लाइड है तो दूसरी जगह भी वही हम अप्लाई करेंगे. तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. हमेशा कंडीशन नीड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है. क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे ह्यूमन कंसर्न है ना, तो ह्यूमन कंसर्न की वजह से हमेशा क्या होता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं कि इस जगह के लोगों का अलग है, फिर कहीं और का अलग है, और
हर इंडस्ट्रीज़ कुछ कुछ बना रही है अलग अलग चीज़, कुछ लोग बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में है, कुछ प्राइमरी प्रोसेस में है, कुछ टर्शरी प्रोसेस में है। तो उस हिसाब से ये हर जगह सेम आपको मतलब यूनिवर्सल है, बट कंडीशन के हिसाब से इट गॉट चेंज। एंड इंटरैक्टिव मेथड मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल। देखो हमने अभी बताया था 5M के बारे में, मैन मटेरियल मशीन ये सब के बारे में हमने मतलब बताया था। तो उसमें क्या मशीन तो नॉन लिविंग थिंग होती है, मैन क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। तो इन सबका एक कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट, और इनको कोऑर्डिनेट करके हार्मोनाइज्ड वे में वो अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को फ्रूटफुली। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट रिक्वायर द यूज़ ऑफ ग्रुप एफर्ट टू अचीव देयर गोल। अब ऑब्वियसली है, जब ह्यूमन है तो वहाँ पे ग्रुप होगा तो जब मिलकर साथ में काम करेंगे देन ओनली दे विल अचीव द गोल। मैनेजमेंट इज़ अ विटल पार्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी अगर अच्छे से करनी है, हमें अच्छे से कुछ अचीव करना है एक साथ, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। मैनेजमेंट यूनाइट्स with their goal what they cannot achieve individually। मैनेजमेंट के मतलब ऐसा नहीं ग्रुप ऑफ लोग आ गए, मैनेजमेंट वहाँ नहीं कर रहे हैं, किसको काम डिवाइड कर दिया, नहीं डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि हेनरी फेयल को 14 प्रिंसिपल्स में डिवीज़न ऑफ वर्क भी है। तो उसमें जब आप डिवीज़न ऑफ वर्क डिवाइड कर रहे हो, अथॉरिटी डेलीगेशन ये सब भी है 14 प्रिंसिपल्स के बारे में, 14 प्रिंसिपल्स में सॉरी। तो वहाँ पे आपको जब आप प्रॉपर तरीके से आप अचीव करना चाहते हो तो आपको सभी काम को डिवाइड करना होगा, तभी आप सीक्वेंस वे में अच्छे से अचीव करोगे। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल का मतलब होता है हम जिसको छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच देम। लाइक जैसे कंप्यूटर में होता है सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल और हार्डवेयर टेंजिबल होता है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट भी क्या इंटेंजिबल। इट इज़ अनसीन फोर्स बट इट प्रेजेंट सीम इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। वो किस फॉर्म में हम देखते हैं, रिजल्ट के फॉर्म में। जो काम जब आज हो जाता है, कुछ बन के आता है, कुछ हो जाता है, तो उस फॉर्म में हम देखते हैं। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट we have now, we will deal with the will know about level of management। देखो level of management मतलब क्या होता है कि किस किस लेवल के बारे में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लेवल है। जैसे अभी मिस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जा रही है, अथॉरिटी नीचे आ रही है। तो मैं इस पिक्चर में जो भी ये डायग्राम है उसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की बता रही हूँ आपको, ठीक है। टॉप लेवल पे हमारे कौन कौन से होते हैं जो हायर पोस्ट पे होते हैं, वो हमारे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये हमारे होते हैं टॉप लेवल पे। तो ये लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अथॉरिटी इनके पास होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिसी होती है ऊपर से आती है नीचे की ओर, लाइक टॉप मिडिल लोअर, ठीक है। तो जो मिडिल लेवल पे आते हैं उसमें होते हैं मार्केटिंग मैनेजर, परचेजिंग हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एंड फिनेंस मैनेजर। तो यहाँ पे मैनेजर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। तो उन्होंने अथॉरिटी बनाई, कोई पॉलिसी बनाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। अब ये क्या करेंगे, ये इसको जो लोअर लेवल पे हैं, ऑपरेटिंग लेवल पे हैं, तो उनको वो डेलीगेट करेंगे कि हाँ आपको ये काम करने, ये ऊपर से आई है पॉलिसीज़ बन के, यू विल हैव टू फॉलो देम। तो लोअर लेवल पे आते हैं सुपरवाइज़र, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, और लास्ट में हमारे वर्कफोर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको ये बताई जाती चीज़ें और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, नीचे की ओर से ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे थोड़ा कम फिर ज़्यादा, मतलब ये इस तरीके से सीक्वेंस में बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा जब आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे तो आप यही सीक्वेंस को आप देखोगे। और अगर कोई ग्रीवेंसेज है तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इट मीन्स जो वर्कफोर्स को कोई ग्रीवेंसेज है तो लोअर लेवल को बोलेगा, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप में जाएगा। और पॉलिसी बननी है तो वही होता है क्या, टॉप से मिडिल आता है, मिडिल से लोअर, देन वर्कफोर्स। सो नेक्स्ट वी विल हैव अनदर स्लाइड्स, मैनेजेरियल स्किल। अब देखो जैसे इन प्रीवियस स्लाइड वी अंडरस्टूड दैट टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल किस जगह पे कौन कौन लोग होते हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये डायग्राम्स बना रहे हो ना, ये जो भी फिगर बना रहे हो, कोशिश करो कि चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो आपका जो है आपको समझ में भी ईजी आएगा और
आप मतलब अच्छे तरीके से अगर ये पिक्चर आप बना रहे हो एग्ज़ाम में, ठीक है, फिर उसको आप स्लोली ग्रेजुअली आप एक्सप्लेन करो, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब मैं ये बता रही हूँ कि हर लेवल पे कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डील विद द टॉप मैनेजमेंट लेवल पे देखो, इस ग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपके ये दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जैसे कंसेप्चुअल स्किल है, कंसेप्चुअल स्किल टॉप मैनेजमेंट आप देख रहे हो कि कितना परसेंटेज इस ग्राफ में, ये जो ये स्लाइड शेड वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल मतलब जो टॉप लेवल पे होते हैं उनका माइंड जो होता है वो कंसेप्चुअली वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनको स्किल होता है उसके बारे में। फिर ह्यूमन स्किल आप देख रहे हो कि इक्वल है, ठीक है, हर जगह, पर ये जो कंसेप्चुअल और टेक्निकल है इसमें वेरी कर रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट डजंट मैंडेटरी, दैट दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू हैव मच मोर टेक्निकल स्किल, बट कंसेप्चुअली और ह्यूमन स्किल उनके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वही बात करते हैं मिडिल लेवल पे, लाइक मैनेजर का आप देख रहे हो बिल्कुल इक्वल है, कंसेप्चुअल भी उनका है, ठीक है, ह्यूमन स्किल उनका ज़्यादा है इन दोनों से, टेक्निकल से। तो उनको टेक्निकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनको काम करवाना है, और काम तब हम करवा सकते हैं जब तक हमें पता ना हो ये काम करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो लोअर लेवल में क्या उनका टेक्निकल आप देख रहे हो कितना ज़्यादा, ह्यूमन स्किल, क्योंकि ह्यूमन स्किल इसलिए ज़रूरी है, आगे जैसे मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगी कि मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो dear students, so this is sufficient for today. In next other slides I am going to explain about you about the role of manager, about administration and management. So thank you. Keep